भारतीय चुनाव आयोग ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ और दिन टाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि पूरे हिमाचल में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. गुजरात के गिर सोमनाथ जिला में भूत प्रेत की अंधश्रद्धा में 14 साल की बच्ची को तड़पा कर मारने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ के तालाला के धावा गांव में बच्ची की बलि मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। खुद बच्ची के पिता और ताऊजी ने ही अंधश्रद्धा में अंध होकर बच्ची की निर्मम रूप से हत्या कर दी। उसे तड़पा कर मौत के घाट उतारा दिया गया। इस मामले बच्ची के पिता और पिता के बड़े भाई यानी ताऊजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गिर सोमनाथ एसपी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर बताया कि 14 साल की धैर्या को भूत लगा होने की अंधश्रद्धा रखते हुए उसे करीबन 8 दिनों तक खेत में तरह तरह की तांत्रिक विधियां उस पर की गई और उसके बाद तांत्रिक विधियां का इस कदर असर हुआ कि बच्ची की आखिरकार मौत हो गई। इस मामले बच्ची की माता और नाना जी की शिकायत के आधार पर पुलिस की जांच में यह समूचा मामला उजागर हुआ है, जिस पर एसपी मनोहर सिंह जाडेजा ने जानकारी दी। તાલાલાના ધાવા ગામમાં એક ભાવેશભાઈ અકબરી કરીને જે છે એણે પોતાની દીકરીનો બલિ ચડાવ્યો છે, કોઈ તાંત્રિક વિધિ કરાવી છે। ભાવેશ અકબરીની એક જ દીકરી 14 વર્ષની ધૈર્યા જેનું ડેથ થયું છે, એ ધૈર્યા અહીંયા એના મોટા બાપુ એટલે કે દિલીપ સાથે રહે છે। નવરાત્રિમાં અનુષ્ઠાન કરવાના બાને ભાવેશ સુરતથી અહીંયા આવેલો, પોતાના ખેતરમાં જ પોતાની વાડીમાં એણે માતાજીનું સ્થાપન કરેલું અને ત્યાર પછી દીકરીને 1લી તારીખે સ્કૂલેથી આવ્યા પછી, સ્કૂલનો પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કરીને આવ્યા પછી 1લી તારીખે એને અહીંયા બોલાવી ખેતરે, એની જે ઓળી માતાજીનું સ્થાપન કર્યું ત્યાં જ, અને ભાવેશને એના પિતાને એવી શંકા હતી કે આ દીકરી જે છે એને ભૂત અથવા કંઈક વળગાડ છે, એટલે એને પહેલાં તો શરૂઆતમાં દીકરીને ટોર્ચર કરી કે ભૂત વળગાડ નીકળી જાય। ત્યાર પછી એણે આ દીકરીના જેટલા કપડાં હતા, એના મોટા પપ્પા પાસે રહેતી હતી ત્યાંથી જેટલા કપડાં હતા એ મંગાવી અને એ બધા કપડાં દીકરીની સામે જ સળગાવીને એને એકદમ નજીકમાં ઊભી રાખવામાં આવી અને ત્યાર પછી કેમ કે નજીકમાં ઊભી રાખી 1.5-2 કલાક સુધી ઊભી રહી દીકરી, એટલે એના હાથ અને પગમાં ફોડલા પડી ગયા। ત્યાર પછી પણ એણે આખી રાત એને પૂછપરછ કરી કે તને કયું ભૂત વાગ્યું છે, કયું વળગણ છે, અંધશ્રદ્ધામાં। અને ત્યાર પછી બીજી તારીખથી 2-10 થી તો 7-10 સુધી એણે એના ખેતરમાં, જે શેરડીનું ખેતર છે, શેરડીની વચ્ચે દીકરીને ખુરશી સાથે માથાના વાળ સાથે બાંધી અને ત્યાં સતત પૂછપરછ કરી રાખી। એ 7 દિવસ દરમિયાન એને પાણી કે ખાવાનું પણ ન આપ્યું અને 7 તારીખે એને ડાઉટ ગયો કે આ દીકરીનું ડેથ થઈ ગયું છે, કીડા પડી ગયા છે અંદર, એટલે એણે એક પ્લાસ્ટિકમાં એની ડેડ બોડી વીંટાળી, એના ભાઈને દિલીપને બોલાવી એની ગાડી મંગાવી, એમાં ડેકીમાં ડેડ બોડી નાખી, ગામમાંથી 7 માણસોને, એમના જે કુટુંબના હતા એમને એવા બાના હેઠળ બોલાવ્યા કે આ દીકરીને એક પ્રકારની બીમારી થઈ છે, ખૂબ ચેપી બીમારી છે અને એ ચેપી બીમારીને કારણે એનું ડેથ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે સ્મશાન વિધિ તાત્કાલિક કરવી પડશે। અમારી પાસે 7 એવા વિટનેસ છે જેમને સ્મશાનમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, એમણે ડેડ બોડી, એમાંથી 2 જણાએ ડેડ બોડી જોઈ પણ હતી અને એમણે ક્વેશ્ચન પણ કર્યો હતો। આ સાથે વિટનેસના પુરાવા છે અને સાથે દીકરી જેની સાથે રહેતી હતી એની મોટી મમ્મીનું પણ સ્ટેટમેન્ટ છે। આ બધાના આધારે અમે 302નો ગુનો દાખલ કરી દિલીપ અને ભાવેશ, દિલીપ મદદગારીમાં અને ભાવેશ મુખ્ય આરોપી અમે અરેસ્ટ કરી લીધા છે।
वडोदरा के वासना रोड पर मुद्रा सोसाइटी में लूट की घटना को पुलिस ने सुलझा लिया है और लूट में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 8 अक्टूबर को वडोदरा के वासना रोड पर मुद्रा सोसाइटी में A1 नंबर में रहने वाले पटेल परिवार को अज्ञात लुटेरों ने बंदूक की नोक पर घर में बंधक बनाकर लूट लिया था। दीपक पटेल और उनकी पत्नी दिव्या पटेल से मारपीट कर लाखों रुपए के जेवर और 25,000 नगद की लूट चलाकर 3 लुटेरे फरार हो गए थे, जिनकी जांच में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 लोगों को फरार घोषित किया है। पिछली 7 तारीख को गोत्री इलाके में जो मुद्रा सोसाइटी है वहाँ दीपक जयसिंह भाई पटेल उसके घर पे उसकी और उसकी औरत को दोनों को बंधक बना के उसके हाथ पैर बांध के मुंह पे पट्टी लगा के उसके घर में सोने चांदी के गहने और 40,000 रुपया कैश मिला के 16 लाख और 90,000 की जो लूट की थी। तो वो पहले गोत्री पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद में सीनियर ऑफिसर ने ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को दिया था। हमने अलग अलग 6 टीम बनाकर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो टीम काम पे लगाई थी वो कल हमको इसमें सफलता मिली है। कुल 6 एक्यूज को हमने उसमें पकड़े हैं और पता चला है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो हमने IPC 120B की सेक्शन भी लगाई है और 5 एक्यूज पकड़ने के बाकी हैं। जो पकड़े गए हैं एक्यूज उसमें अनिल कल्लूभाई कनौजिया, दूसरा अंकित पटेल, तीसरा विक्की उर्फे विक्की सुकुमार घोष, उपेंद्र गोहिल, हेमंत जाडेजा और रविंद्र रावल। जो 6 एक्यूज है वो पकड़े गए हैं। बाकी के जो 5 एक्यूज पकड़ने के बाकी है उसमें देवल प्रजापति, बिट्टू पटेल, योगेश सिन्हा, हीरालाल मुंगावत और एक जुवेनाइल जो है माइनर बॉय है, उसका नाम हम नहीं ले सकते। वो 5 पकड़ने के बाकी है। और बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे जो पीयूष देसाई इंस्पेक्टर है वो कर रहे हैं। जो एक्यूज जिसका एक्टिव रोल है उसकी कल TI परेड भी हम करने जा रहे हैं और बाकी के जो एक्यूज है उसका कल हम फर्दर रिमांड भी लेंगे। दिवाली यानी घर सजाने का और घर के आंगन में दिए जलाने का त्योहार। 2 साल बाद अब जब महामारी से देश उभर चुका है, तब छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले लोग तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। 2 साल दिवाली फीकी ही रही, लेकिन अब महामारी को हमने पीछे छोड़ दिया है और दिवाली का उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। दिवाली की तैयारियों में हर कोई जुटा हुआ है और इसी बीच वडोदरा में दिवाली के बाजार भी सज गए हैं। वडोदरा के सिटी इलाके में तरह तरह के सुंदर रंग बिरंगी तोरण लटकन बिक रहे हैं। शहर के नवा बाजार में नवरात्रि के बाद अब दिवाली की वस्तुओं की बिक्री लाल, हरे, पीले मोतियों के, रेशम के, ऊन के और तरह तरह के लटकन दिख रहे हैं, जिनकी कीमत 20 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक है। 2 साल से लोगों ने भी दिवाली की वस्तुओं की खरीदारी नहीं की है। ऐसे में इन बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने मिल रहा है। दिवाली में ऐसा है कि तोरण की वैरायटी बहुत निकले इसमें अहमदाबाद का आता है, सूरत का आता है, दिल्ली का आता है, बॉम्बे का आता है। नहीं, वैरायटी बहुत सारी है। नहीं, ये 2 साल के अंदर कोरोना में मारा मारी थी, इसके लिए पब्लिक का भी घसारा बहुत अच्छा है। व्यापारी लाइन में धंधे भी अच्छे हैं। जो को भी मैं तो बोलता हूँ मोघवाड़ी इतनी है, पर मोघवाड़ी के दृष्टि से धंधा भी अच्छा है। हमारे पास ये 2 साइड दरवाजे के साइड के मिलते हैं, बीच के मिलते हैं, साइड में मिलते हैं, फूल की दृष्टि में मिलते हैं, दिवाली के आसोपालव के दृष्टि में मिलते हैं, प्लास्टिक में। वो सब वेरायटी अलग अलग होती है। આ દિવાળીની ખરીદી કરવા નીકળ્યા છે। કોરોના હતા 2-3 વર્ષથી, હવે કોરોના નથી, અત્યારે દિવાળી નવી નવી બધા નીકળ્યા છે તો લેવા ખરીદી કરવા નીકળ્યા છે। मिट्टी के दियों के बिना दिवाली हमेशा अधूरी है। घर के आंगन में, दरवाजे पर, बालकनी में और हर जगह दिवाली में दिए जलाना एक परंपरा है और इसी परंपरा के तहत खूबसूरत रंग बिरंगी मिट्टी के दिए बनाकर तैयार हो रहे हैं। मिट्टी के लाल दियों के साथ साथ रंग बिरंगी कलरफुल दिए भी बाजार में खूब बिक रहे हैं। बेहद खूबसूरत रंगों के साथ इन दियों को सजाया गया है। वडोदरा में कई कुम्हार परिवार इन दिनों दिन रात अलग अलग डिजाइन के दिए बनाने में जुटे हुए हैं और उन्हीं को रंग रोगान के बाद बाजार में बेचा जा रहा है। तरह तरह के खूबसूरत दिए घर की शोभा बढ़ाने के लिए लोग खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं।
दीपक में तो हर बार नई नई वैरायटी बनती रहती है। समझो कि पुराने सालों में कि बहुत देसी जो चाक से बनता था, अभी हो गए फैंसेबल यानी डाई से बनना चालू हो गए। उसमें भी कई प्रकार की मतलब में दीपक बना रहे हैं हम, लगभग करीबन 40-50 जात के वो दीपक हमने बना दिए। अभी रिक्वायरमेंट ऐसी भी आ रही है कि मतलब में मीन वाले और वर्क वाले, कॉन वर्क वाले सभी प्रकार के हम दिवाली में दीपक बेचते हैं। और दीपक की महिमा और मिट्टी का दीपक जो बोलते हैं, भले दिवाली किसी के घर में हो पर मिट्टी का दीपक से ही वो चालू करेगा। मिट्टी का दीपक का महत्व ज़्यादा है।